You told us that you studied many religions and dharmas in India, and in spite of the differences, you found out some similarities, and you come up with those similarities in the book. I'm thinking, why aren't you thinking about the similarity? There may be many similarities in Western culture and Chinese and all that. So if you take out that, that will lead us to the ultimate peace and ultimate happiness. So, okay, so that is a very common thing. That is what a lot of our gurus are doing. That is what a lot of gurus are doing. But you know, you have to understand what you are dealing with even before you can start that. Before you can start finding what is common and teaching what is common, you must understand what is the requirement of that religion. What is the requirement of that religion? Yeah, you have to understand it. Then you can sit with knowledge to discuss with those people. You see, a lot of people are going on saying Ram is same as Muhammad. It is an insult to Islam. Do you know that? It is an insult to Islam. Because God does not have avatar in Islam. We have Ram is avatar. But God never takes human birth in Islam. So to call Muhammad God's incarnation is blasphemy. So आप लोग बोलते जाए सब सेम है, अपने आप को खुश कर सकते हैं, but you are insulting the other person. You follow? You must first understand वो क्यों कह रहे हैं ऐसे. You must understand them. Not they are right or wrong, but you must understand what they are saying. Islam में you cannot worship Muhammad. It is blasphemy. It is idol worship. Never say Muhammad is sacred. He is not. No Muslim will tell you that. Ask him, do you worship Muhammad? They'll say, no, we can only worship Allah. Is Muhammad the son of God? He'll say, no, there has never been such a son. Jesus, according to Christians, is the son of God. You can draw some analogies with Avatar. Of course, they'll say that there can be only one son of God, others are not valid sons of God. Ram and Krishna cannot be because God had only one son. Do you know why God can have only one son? Okay, I will give you an answer. Then you tell me how we can be same. God, first of all, Adam and Eve का नाम सुना होगा आपने. Adam and Eve ने कुछ ऐसा कर्म किया which is called original sin. Original sin, और God ने उसको कर्स दिया कि all the children, all your offspring, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के forever and ever will be condemned. उनको श्राप दिया. उसको कहा कि they will all be born sinners. जन्म से ही they will be sinners. मतलब वो कर्स दिया उनको. कर्स तो आप समझते हैं ना. हाँ? तो गॉड ने एडम एंड ईव को कर्स दिया कि तुमने ऐसा काम किया है, इसके बारे इसका नतीजा ये है कि फॉरएवर आपके सारे बच्चे फॉरएवर ह्यूमन रेस में जितने भी आपके पैदा होंगे उनको जब दे विल बी बॉर्न सिनर, जब जन्म ही हुआ दे विल बी बॉर्न सिनर्स. तो ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी. तो फिर गॉड को बहुत दुख हुआ कि ये क्या बात होगी है, एंड गॉड वांटेड टू हेल्प. सो बात ऐसी है कि कोई इंसान तो हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि वो जो इंसान हेल्प करने वाला है वो खुद ही सिनर है, खुद ही बॉर्न सिनर है. आप बॉर्न सिनर हैं तो आप मेरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ? अब वो गॉड का प्रॉब्लम हो गया. अब गॉड कहता है मैं किसी पैगंबर को, किसी भी प्रॉफिट को अपनी इंस्ट्रक्शंस दूं, लेकिन वो प्रॉफिट भी तो एडम एंड ईव का ही ऑफस्प्रिंग है, तो इसका मतलब वो भी बॉर्न सिनर है. जैसे भी मैं उसको कह दूं वो लोगों को कैसे सेव कर सकता है? ही हैज हिमसेल्फ सिनर, वो भी सिनर है. तो फिर गॉड ने ये कहा कि सपोज आई टेक बर्थ, मैं अपने बेटा बन के आऊं, आई सेंड माई सन. तो फिर उसकी चर्चा हुई कि वो भी बॉर्न सिनर होगा अनलेस वर्जिन बर्थ हो. वर्जिन बर्थ का मतलब ये है कि वो एडम एंड ईव का बच्चा नहीं है, क्योंकि उसका फादर मदर नॉर्मल सेक्स से बच्चा नहीं पैदा हुआ. उसकी मदर ह्यूमन बीइंग है पर उसका फादर गॉड है, इसलिए वो एडम एंड ईव का बच्चा नहीं है. समझ के बात? आपको समझ आई वर्जिन बर्थ क्यों जरूरी बात है? वर्जिन बर्थ ना होता जीसस का तो जीसस वुड बी बॉर्न सिनर. जीसस भी सिनर बॉर्न होता क्योंकि वो एडम एंड ईव का बच्चा होता
हाँ, तो क्योंकि वो एडम एंड ईव का बच्चा होता, तो इसलिए वो बाकियों को कैसे सेव कर सकता है, वो खुद ही सिनर होता। ठीक बात है ना। तो इसलिए उनकी हिस्ट्री और फिलॉसफी के मुताबिक, क्योंकि ओरिजिनल सिन हुआ और भगवान ने ऐसे श्राप दिया, तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए जीसस हैज टू टेक बर्थ वर्जिन with only God as the father, so he is not born a sinner. You must understand this. So this happened. So then Jesus comes. Now he is the only man ever who was not born sinner. Christians को आप बोलेंगे तो बहुत impress हो जाएंगे कि वाह, ये Hindu knows. ये इसको ऐसे हम बोल नहीं सकते. This Hindu knows. You tell Hindu, I understand why Jesus is the only man who is not born sinner. उसके पहले भी सब born sinners थे, आप लोग हम भी born sinners हैं. अब जीसस का एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, he is not born sinner. Now Jesus has to do something ताकि वो जो एडम एंड ईव का श्राप था वो दूर हो जाए. So because Jesus is infinite, he is God. God आ गया. तो यदि वो सफर करे, जो आपका सिन है, उसके आपको सफर करने की जगह वो खुद सफर करे. He suffers for other people. He suffers for the whole world. He suffers for everybody by being crucified. मतलब जो उसको क्रूसीफाई करते हैं तो वो सहता है. कितनी उसको मारपीट है, कितना उसको दुख होता है, कितना उसका खून निकलता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियंस को अंडरस्टैंड करना और सिखाना कि उसको कितना उसने सफर किया, आपके लिए सफर किया. क्राइस्ट ने आपके लिए सफर किया, ताकि जो श्राप था एडम एंड ईव, सारे ह्यूमैनिटी को, सारे ह्यूमन काइंड को, सारे मैनकाइंड को श्राप दिया था, वो सारा श्राप वो आप ही भुगत रहे. वो क्योंकि भुगत रहा है, ही विल सफर फॉर यू ऑन योर बिहाफ. उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल अटोनमेंट. मतलब कि आई विल सफर ऑन योर बिहाफ. मतलब आपको समझो किसी ने फाइन दिया तो मैं फाइन पे कर दूंगा आपके लिए, या आपको जेल मिली तो मैं आप जेल आपके लिए कर दूंगा. जीसस बाकी सारी ह्यूमैनिटी के बिहाफ पर सफर करता है. पर जीसस कहता है कि दोज हु बिलीव इन मी, कि मैंने ये सफर किया, मैं गॉड का वन एंड ओनली सन हूं, जो मेरे लिए ये बिलीव करते हैं वो छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे. दिस इज कॉल्ड सैल्वेशन. दिस इज कॉल्ड द गुड न्यूज, क्रिश्चियन गुड न्यूज. क्रिश्चियन गुड न्यूज मीन्स कि गॉड का सन आ गया, आ चुका है. वो सिनर नहीं था क्योंकि वो वर्जिन बर्थ हुआ था उसका, और उसने आप लोगों के लिए सफर किया क्रॉस पर, बहुत भुगता. और क्योंकि उसने आपके लिए सफर किया और भुगता, इसलिए आपको भुगतना ना पड़े. और अभी आप सिनर हैं, बॉर्न सिनर हैं, सब लोगों की तरह आप बॉर्न सिनर हैं. यदि आप क्रिश्चियन बन जाएं और कहें कि जीसस वॉज द वन एंड ओनली सन ऑफ गॉड, ही वॉज बॉर्न ऑफ मदर मेरी एज अ वर्जिन बर्थ, ही सफर्ड एंड डाइड ऑन द क्रॉस. यदि आप उसको मान लें, वो उसको नाइसीन क्रीड कहते हैं ये बात को. यदि आप ये बात को मान लें तो आप क्रिश्चियन बन गए, और उसको कहते हैं गुड न्यूज एंड सैल्वेशन. अब हमारे घर हर साल क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं न्यू जर्सी में, नॉक करते हैं, and they are being trained to go to India and various places and convert people. तो प्रैक्टिस के लिए पहले उनको नेबरहुड में जाना पड़ता है, जस्ट टू प्रैक्टिस. तो हमारे घर आते हैं तो हम उनको बुलाते हैं अंदर, दे सिट डाउन, आई इनवाइट देम एंड से ओके लेट्स टॉक. हम बात करते हैं, एंड आई ऑलवेज प्रिटेंड कि मेरे को समझ नहीं आई क्या बोल रहे हैं यार ये. आई ऑलवेज प्रिटेंड बिकॉज आई हैव फन लाइक दैट. सो आते हैं, पहले छोटी मोटी बात करते हैं कि हाँ आप बताएं, थोड़ा स्मॉल टॉक टू बी कंफर्टेबल. फिर उनको ट्रेनिंग है कि आफ्टर सम टाइम वन ऑफ देम, दे आर ऑल वेरी वेल ड्रेस्ड यंग मैन विमेन आते हैं, टीम में आते हैं. वन ऑफ देम आस्क्स, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन सर? तो मैं कहता हाँ जरूर, व्हाई नॉट, प्लीज आस्क. तो कहते हैं हैव यू हर्ड द गुड न्यूज? तो उनको ट्रेनिंग दिया है, दूसरा बोलेगा हाँ आई हैव ऑलरेडी बीन सेव्ड, मेरा ये. तो फिर कैसे जवाब देना कि नहीं वो तुम्हारा गॉड नहीं सेव कर सकता. Only Jesus can save because he had virgin birth and he suffered on the cross. Nobody else did it. Only Jesus suffered on the cross. So सिर्फ Jesus ही ये सेव कर सकता है. हाँ, तो वो अब उनका लॉजिक बड़ा डेवलप्ड, उनको ट्रेनिंग मिली है. तो I say good news. What good news? Stock market went up, or did you win the lottery? What good news? So just to
सी क्या होगा, तो वो घबरा जाते हैं कि इसको तो पता ही नहीं. सो देन दे हैव टू टेल मी कि यू नो गुड न्यूज इज यू नो वी आर सिनर्स एंड वी विल बी सेव्ड. तो मैंने कहा व्हाई आर वी सिनर्स, आई डन नथिंग रॉन्ग, यू आई डोंट थिंक यू डन एनीथिंग रॉन्ग, व्हाट हैव यू डन. तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही बुद्धू आदमी है. So then they say, no, but don't you know about Adam and Eve? We have, मैं कहता हूँ, who's they? What did they do? So they tell me वो Adam and Eve की कहानी. So we are born sinners. So मैं कहता हूँ कि but that is not my fault. What जो Adam and Eve ने किया, why is it my fault? तो कहते हैं no, God put this curse. Everybody is born sinner. मैं कहता हूँ अच्छा, this is very bad. God can do that. Why would he do that? I had not done anything wrong. Why would he do that? मैं उनको बहस करता हूँ बड़े प्यार से. तो they keep wondering, you know, how to fix this guy. He's pretty thick-skinned, you know. So then I ask them, have you heard the Hindu good news? And they say, उनको ऐसी बात कभी nobody has asked, you know. So they all look at each other. Hindu good news? No. What is Hindu good news? मैं कहता हूँ Hindu good news is there is no original sin. We are all originally divine. We are all originally divine. हाँ, मतलब हम ओरिजिनल सिनर नहीं हैं, हम ओरिजिनली डिवाइन हैं, विच इज सो डिफरेंट. हाउ कैन यू से इट्स सेम? इफ यू आर ओरिजिनल सिनर तो आपको प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन वो दे सकते हैं. आप ओरिजिनली डिवाइन हैं, आपका वो प्रॉब्लम नहीं है. आपका प्रॉब्लम है अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने अंदर जाके वो खोज करना और एनलाइटन करना, अपने आप में जो सच्चिदानंद है वो प्राप्त करना. So it is like one doctor comes to you, doctor number 1 comes to you and says, sir, I have good news. तो आप बोलें क्या good news है? He says, I can cure your disease. And I am the only person who can cure it. क्योंकि मेरे को God ने exclusive contract दे दिया कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ये cure होगा. तो then comes doctor number 2. Doctor number 2 says, I have better news. तो आप बोलें better news क्या है? वो कहते हैं बेटर न्यूज ये क्या, यू डोंट हैव द डिजीज, यू डोंट हैव द डिजीज. सो द धर्मा डज नॉट हैव द आइडिया ऑफ ओरिजिनल सिन. सो हाउ कैन यू से वी आर ऑल द सेम? दे हैव अ सर्टेन फिलॉसफी ऑफ क्या हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसका क्या इलाज है. एंड वी डू नॉट हैव द आइडिया ओरिजिनल सिन था. वी डू नॉट बिलीव कि वो उसके कारण हम सभी ओरिजिनल सिनर्स बन गए और उसको अब सॉल्व करने के लिए गॉड ने वर्जिन बर्थ किया ताकि वो ना सिनर हो जाए, और फिर गॉड को क्रूसीफाई किया, खूब सफर करना पड़ा, और अब हमको वो बिलीव करके हम भी सेव हो जाएंगे. अब इफ वी बिलीव इन दैट then you might as well close this temple down and forget your dharma, because then you might as well just become a Christian. It has nothing to do with what we are being taught. It has nothing to do with what we are being taught. And आप अपनी तरफ से उनको जो मर्जी बताएं, we are one, some truth is one, but that man, to be a Christian, has to believe in these 5 things. God punished, Adam and Eve committed this. God punished them with original damnation of all the offspring. The only solution was God has to take virgin birth, so he's not a sinner. That is Jesus Christ. Then he had to suffer for behalf of everybody else to save other people. He has to suffer on their behalf, and you have to believe in this, and then you will be saved. ये 5 requirement called Nicene Creed. Yeah, if you believe in Nicene Creed, आपका karma reincarnation throw out. If you believe in karma reincarnation, Nicene Creed makes no sense. So this is why जो लोग बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, with good intentions बोलते हैं, why can't we all be one and all that? This is the reason it is not so easy. You must, आपको इंटरफेथ डायलॉग में भाईचारा करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने अभी आपको समझाया आपको पहले पता होना चाहिए वो. Only then you can go. Otherwise हम लोग अब जाके अपना आपको we make a fool of ourselves. We make a fool of ourselves if we don't know कि उनकी क्या belief है. You must know that. Then you can discuss with them. Thank you. Thank you.